Question number 6. English alphabet has 5 vowels and 25 consonants. How many words with 2 different vowels and 2 different consonants can be formed from the alphabet? English alphabet. Total 5 vowels and 21 consonants. How many vowels are there? 5. And consonants 21. Total 26 alphabets are there in our English alphabets. So here, from these 5 vowels and 21 consonants, we have to form the word with 2 vowel and 2 different consonants. That means we have to form 4-letter word in which we have to select 2 vowels from these 5 total vowels, and we have to select 2 different consonants from the total 21 consonants. So we have to generate one 4-letter word. 4-letter word in which 2 different vowels and 2 different consonants are there. Clear? आगे सबको लॉजिक समझ में क्या करना होगा? So number of different words सिंपल है. कौन बताएगा मुझे? बोलो. Total number of different words. 4-letter वर्ड जनरेट करना है, उसके लिए आपको सिलेक्शन करना होगा. पहले तो क्या सिलेक्शन? 2 वोवेल और 2 कॉन्सोनेंट्स का. तो 2 वोवेल लेंगे यहाँ से, है ना, टोटल 5 कॉन्सोनेंट्स है. सो इट्स 5C3 5C2 5C2 और 2 कॉन्सोनेंट्स लेंगे यहाँ से 21 में से. इट्स 21C2. डन. तो टोटल 4-लेटर वर्ड जनरेट होगा. 1 2 3 4. और 4-लेटर वर्ड में आप 2 कॉन्सोनेंट और ये 2 वोवेल आप कहीं पर भी लगा सकते हो. 1 2 3 4 टोटल 4 डिफरेंट वे से आप अरेंज कर पाएंगे. सो मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल इज द आंसर. क्लियर? सो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द 2 वोवेल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स इज इक्वल टू 5C2 इंटू 21C2 इंटू 4 फैक्टोरियल. सिंप्लीफाई करो. 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 21 factorial, 19 factorial into 2 factorial into 4 factorial. So this 5 factorial, 5, 4, 3 factorial cut, 4 2 2 4, so 5 2 10. This will be 10. This one 21, 20, 19, 19, 19 cut, 2 into 2 10s are 20. So 10 and 21, 210 and 4 factorial 24. Done. करो multiplication. 250400. These are the different number of words can be generated by using 2 different vowels and 2 different consonants from this English alphabet. Simple. कुछ नहीं था. Now question number 7. 7th question. In an examination, a question paper consists of total 12 questions divided into 2 parts, that is part 1 and part 2, containing 5 and 7 questions respectively. A student is required to attempt 8 questions in all. Selecting at least 3 from each part, how many different ways can a student select a question? Done. So examination है. There is one examination. In examination, a question paper is there. That question paper consists of total 12 questions. So total number of questions. Total number of questions in question paper 12. है ना. Question paper के अंदर total 12 question है. और question paper के अंदर how many parts are there? Question paper consists of 2 parts, part 1 and part 2. So let's say part 1 and part 2. Done. Part 1 consists of 5 questions. Part 1 के अंदर कितने क्वेश्चन है? 5. And part 2 consists of 7 questions. Total 12 questions are there. Now, what is the condition? A student is required to attempt 8 questions.
है ना, 12 में से उसको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। टोटल 12 क्वेश्चन आ जाए, 12 क्वेश्चन में से उसको मिनिमम 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और कंडीशन क्या है, स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस इन ऑल, सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट। हर एक पार्ट में से उसको मिनिमम 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। ऐसा नहीं कि 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो ये साथों साथ अटेम्प्ट कर ली और ये 1 अटेम्प्ट किया। दोनों पार्ट्स में से मिनिमम 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। डन। ऐसे टोटल 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो हाउ मेनी वेज कैन स्टूडेंट्स select a question? So we have to find the different number of ways by which student can select the question. तो देखो लॉजिक है ना, टोटल 8 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं और हर एक पार्ट में से उसको मिनिमम 3 है ना, एटलीस्ट 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं। तो मिनिमम 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं। तो पार्ट 1 से स्टार्ट करें। सो फर्स्ट केस, डिफरेंट केस आएंगे। देखो फर्स्ट केस इन विच स्टूडेंट टोटल 8 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं, उसमें से सिलेक्ट करने के लिए वो पार्ट 1 में से 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज बाय विच स्टूडेंट कैन सिलेक्ट दी क्वेश्चन। नंबर ऑफ वेज इन विच स्टूडेंट कैन सिलेक्ट द क्वेश्चन। स्टूडेंट कैन सिलेक्ट द क्वेश्चन दैट इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट केस उसको टोटल 8 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं और हर एक पार्ट में से उसको मिनिमम 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो उसके लिए वो पहले क्या करेगा, पार्ट 1 में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है। तो आउट ऑफ 5 क्वेश्चन स्टूडेंट इज सिलेक्टिंग 3 क्वेश्चन, 3 सिलेक्ट कर दिए। और उसके बाद उसको एंड और क्या 3 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिए, उसको टोटल 8 क्वेश्चन सिलेक्ट करने। तो बाकी के 5 क्वेश्चन के लिए वो कहाँ पर जाएगा, अभी पार्ट 2 में जाएगा। तो पार्ट 2 में वो 7 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन सिलेक्ट करेगा। तो 7C5। तो यहाँ पर स्टूडेंट ने 5 + 7 12 में से 3 + 5 8 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिए। डन। ये हो गया फर्स्ट केस। प्लस सेकंड केस क्या हो सकता है कि स्टूडेंट सपोज फर्स्ट पार्ट में से है ना मिनिमम 3 सिलेक्ट करने, 3 से कम नहीं, 3 से ज्यादा सिलेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर अभी वो फर्स्ट पार्ट में 3 की जगह पर 4 क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहा है ना, 5 में से 4 क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहा है। सो 5C4। तो अभी फर्स्ट पार्ट में उसने 5 में से 4 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिए। तो दूसरे पार्ट में उसको कितने क्वेश्चन सिलेक्ट करने होंगे, अभी 8 क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए अभी 4 क्वेश्चन। तो होगा 5C4 और ये होगा 7C4। डन। प्लस और तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि ये फर्स्ट पार्ट है, उसमें से 5 क्वेश्चन उसने सिलेक्ट कर लिए 5C5। डन। 5 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिए। अभी कितने बाकी बचे, अभी 3 ही क्वेश्चन बाकी है। तो वो बाकी के 3 क्वेश्चन पार्ट 2 में से सिलेक्ट करेगा। तो पार्ट 2 में उसके पास टोटल 7 क्वेश्चन है, उसमें से उसको सिलेक्ट करने हैं 3 क्वेश्चन। तो ये 3 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिए। डन। So these are the 3 different possible ways by which student can select at least 8 question out of 12 question, in which he will select minimum 3 question from each part. देखो हर एक पार्ट में से वो मिनिमम 3 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही रहा है। डन। तो इसका सिंप्लीफिकेशन करो, वो आपका आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, 5C3 into 7C5, 5 factorial upon 2 factorial into 3 factorial into 7 factorial 2 factorial 5 factorial plus 5 factorial 1 factorial 4 factorial into 7 factorial 3 factorial 4 factorial plus 5C5 1 हो गया into 7 factorial 4 factorial 3 factorial। डन। इसका सिंप्लीफिकेशन करो फटाफट। 5 4 3 3 3 का 10 10 और ये 7 6 5 7 into 6 and 2 into 3 21 into 10 21 into 10 होगा 210 plus 5 into 4 5 cut 5 into this one 7 factorial 7 6 5 4 और ये 3, तो it will be 5 into 7 7 नहीं 8 बचा था, so 175 plus this one again same, so 35। डन। सो क्या होगा टोटल एडिशन, दिस विल बी इक्वल टू 210 210 420। डन। So total 420 ways are there by which student can select at least 3 questions from the each part, and he will select total 8 questions. Done. Now question number 8.
Question number 8. Determine the number of determine the number of 5 cards combination out of 52 cards, है ना, प्लेइंग कार्ड्स. सो टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन अ deck 52 cards are there. Determine the number of 5 cards combination out of 52 cards if each selection of 5 card has exactly one king, है ना. ये टोटल नंबर ऑफ कार्ड हो गए. उसमें से आपको सिलेक्ट करना है 5 कार्ड कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना है. लेकिन कंडीशन कंडीशन क्या है? कंडीशन आउट ऑफ 5 कार्ड्स यू हैव टू सिलेक्ट एग्जैक्टली वन किंग, है ना. 5 में से एक कार्ड एग्जैक्टली वन किंग होना चाहिए. आगे समझ में? आपको 5 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, 5 में से एक कार्ड आपको किंग होना चाहिए, बाकी के 4 कार्ड कुछ भी हो सकते हैं. आपको कार्ड सिलेक्ट कहाँ से करने हैं? ये 52 कार्ड में से. तो देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नंबर ऑफ वेज बाय विच वी कैन सिलेक्ट द कार्ड. नंबर ऑफ वेज बाय विच फाइव कार्ड कैन बी सिलेक्टेड. देखो सिलेक्शन करना है, 5 कार्ड सिलेक्ट करना है, उसमें से एक कार्ड आपका किंग का होना चाहिए. तो आप खुद सोचो कि जो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं उसके अंदर नंबर ऑफ किंग कितने होते हैं? टोटल 4 सूट होते हैं, 4 सूट के एक किंग होते हैं. तो 4 में से एक कार्ड आपको किंग का ही सिलेक्ट करना है, तो वो होगा 4C1. ये आपका किंग का सिलेक्शन हो गया. आपको एक किंग एग्जैक्टली सिलेक्ट करना ही है. तो एक किंग सिलेक्ट करने के लिए आपके पास टोटल कितने किंग हो गए? 4 किंग हो गए. उसमें से आप एक सिलेक्ट करेंगे. तो दिस आर द नंबर ऑफ वेज बाय वी कैन सिलेक्ट द किंग. किंग को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको टोटल 5 कार्ड सिलेक्ट करने. एक कार्ड सिलेक्ट कर लिया, अभी बाकी के 4 कार्ड सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? किंग में से आप ये किंग तो आपने रिमूव कर दिए. उसके बाद बाकी बचेंगे 48 कार्ड्स. 48 कार्ड्स में से आपको बाकी के 4 कार्ड सिलेक्ट करने होंगे. डन. So by this way we can select the number of cards. That means total number of combination of 5 cards from the total number of 52 cards. Done. इसका सिंप्लीफिकेशन करो फटाफट. 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 48 फैक्टोरियल 44 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल. क्या होगा? ये होगा 4. दिस विल बी 48 47 46 45 44 44 44 कट और ये 4 फैक्टोरियल 24 24 2 जा 48. मल्टीप्लीकेशन करो फटाफट, वो आपका आंसर. 4 इंटू 4 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45. अब इसको ये फॉर्म में रहने दो ना, वो भी चलेगा आपका आंसर. आपको लास्ट में आंसर लिखना है तो भी आप लिख सकते हो. डन. So this is the total number of possible combinations of selection of card. क्या आंसर है? फिर से आवाज दें. 77 778320. Done. Now next 5 men and 4 women are to be seated in a row. एक रो में बिठाना है. Such that women occupy even places, है ना. even places पर बिठाना है. women occupy the even places. बस find the total number of possible combinations. तो देखो टोटल कितनी प्लेसेस होगी? 9 प्लेसेस होगी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना. मेन को यहाँ पर बिठाते हैं ओड प्लेसेस पर, और वीमेन को कहाँ पर बिठाना है? इवन प्लेसेस पर. कितनी वीमेन है? 1 2 3 4. कितनी तरीके से बैठ पाएंगे? 4 फैक्टोरियल. मेन कितने हैं? 5. कितनी तरीके से बैठ पाएंगे? 5 फैक्टोरियल. डन. हो गया आंसर. So number of ways by which these men and women can be seated is equal to 5 factorial into 4 factorial. 5 factorial पता है हमें 120. 4 factorial भी कितनी बार आ गया है? 24. तो इसका आंसर नहीं पता है. क्या होगा मल्टीप्लिकेशन? बोलो. . 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
2880. Done. So these are the possible ways by which these men and women can sit in a row. एक रो में बिठा देना है और इवन प्लेसेस पर आपको women को बिठाना है. तो इवन प्लेसेस पर हमने women को बिठा दिया तो टोटल 4 फैक्टोरियल से बैठ पाएंगे ना. 4 फैक्टोरियल का आपको दिखाना है तो यहाँ पर 4 तरीके से बैठ सकते हैं. यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 और 5 जो मेन है उसको भी आप 5 फैक्टोरियल है ना 5, 4, 3, 2 and 1 पॉसिबल वे से आप बिठा सकते हो. So total number of possible combination in which this men and women can sit in a row is equal to 5 factorial into 4 factorial. Multiplication will give you answer. Clear students? बोलो. नहीं बिठा सकते क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि विमेन को आपको इवन प्लेसेस पर ही बिठाना है. सच दैट ऑल वीमेन ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस है ना. इवन प्लेसेस पर ही विमेन को बिठाना है, ओड प्लेसेस पर नहीं बिठाना है. डन. चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10. From the class of 25 students, 10 are to be chosen for the excursion party. There are 3 students who decided that either all of them will join and otherwise they will not join. In how many ways can the excursion party can be chosen? देखो ये क्या हो गया. So पहले तो ये excursion party क्या होती है? Anyone knows? What is excursion party? आप किसी भी ट्रिप पर चले जाओ है ना, एजुकेशनल टूर ले लो आप या फिर कोई फील्ड ट्रिप ले लो जिसके पीछे कोई आपका है ना कोई रीजन हो कि आप क्यों घूमने जा रहे हो है ना, तो वो आपका हो जाएगा एक्सकर्शन पार्टी है ना. ऐसे ही कुछ बिना सोचे ऐसे कुछ घूमने नहीं जाना है. तो टोटल 25 स्टूडेंट्स आर देयर. उसमें से कंडीशन क्या है, क्लास के अंदर टोटल 25 स्टूडेंट्स है. 10 आर टू बी चोजन एट एक्सकर्शन पार्टी. 10 को आपको पार्टी में आपको ले जाना है और उसमें से एक 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है. वो ऐसा ग्रुप है कि अगर जाएंगे तो तीनों साथ में जाएंगे, अगर नहीं जाएगा तो तीनों में से कोई भी नहीं जाएगा. डन. अगर 3 स्टूडेंट्स है वो डिसाइड करते हैं कि वो जाएंगे तो सारे जाएंगे, अगर वो 3 में से कोई एक नहीं जाएगा तो कोई भी नहीं जाएगा. तो हाउ मेनी वेज कैन देयर एक्सकर्शन पार्टी कैन बी चूजन. तो सिंपल देखो लॉजिक क्या आएगा. टोटल 25 में से आपको 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है, 25 सीट 10. लेकिन कंडीशन 3 स्टूडेंट्स अगर आएंगे तो तीनों को सिलेक्ट करना है. तो देखो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ वेज बाय विच, number of ways by which excursion party be chosen है ना. तो 3 स्टूडेंट सपोज डिसाइड करते हैं कि वो पार्टी में आएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 थे उसमें से तीनों को सिलेक्ट करना है. आएंगे तो तीनों आएंगे, नहीं आएगा तो कोई नहीं आएगा. तो सपोज फर्स्ट केस के तीनों आ रहे हैं तो 3C3 वो एक ही तरीके से आप सिलेक्ट कर पाएंगे. तीनों आ रहे हैं, ओके चलो बैठ जाओ, बैठ गए. और हमें टोटल कितने ले जाने हैं पार्टी के अंदर, 10 स्टूडेंट्स को ले जाना है. तो 3 तो आ गए, अभी बाकी कितने बचे, 7 स्टूडेंट. तो वो 7 स्टूडेंट, ये जो 3 स्टूडेंट है वो क्लास के स्टूडेंट है. तो 25 में से 3 स्टूडेंट आ रहे हैं तो तीनों को हमने सिलेक्ट कर लिया क्योंकि वो तीनों एक साथ में आएंगे. तो तीनों आ गए, अभी बाकी कितने बचे यहाँ पर 25 में से 22 स्टूडेंट्स बाकी बचे क्लास में. और हमें कंप्लीट कितने स्टूडेंट्स करने हैं, 10 स्टूडेंट्स. तो 3 तो आ गए, तो बाकी बचे जो 22 उसमें से हमें कितने सिलेक्ट करने होंगे, कितने करने होंगे, 7. सो इट्स 22C7. डन. दूसरा केस और मतलब एडिशन. और क्या होता है, ये तीनों अभी आ रहे हैं. दूसरा केस ये तीनों मना कर रहे हैं कि हम 3 में से अभी कोई नहीं आएगा. तो तीनों में से तो अभी कोई नहीं आएगा, तो अभी क्या हुआ, बाकी जो 22 स्टूडेंट्स बचे है ना उसमें से हमें 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि जो 3 थे उसमें से कोई नहीं आ रहा था, 3C0 हो गया. तो जो 3 स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है उसमें से कोई नहीं आ रहा है, तो 3 स्टूडेंट्स को निकाल दिया कि चलो कोई बात नहीं, नहीं आ रहे हो जाओ छोड़ो. तो बाकी कितने बचे अभी 22, उसमें से हमें 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना होगा. तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज बाय विच एक्सकर्शन पार्टी कैन बी सिलेक्टेड. क्लियर स्टूडेंट्स, आ गया समझ में लॉजिक.
अभी इसका सिंप्लीफिकेशन आप करो, 3c3 1 इंटू 22c3 22c7, so 22 factorial 22 minus 7 15 factorial into 7 factorial plus 22c10 22 factorial 22 minus 10 12 factorial into 10 factorial डन इंटू 1। इसका सिंप्लीफिकेशन करो, जो भी आए वो आपका आंसर। चलो करते ही इसको, है ना, टाइम है हमारे पास। तो सिंप्लीफिकेशन करो, 22 इंटू 21 इंटू 20 19 18 15 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल पर ब्रेक क्योंकि नीचे 15 फैक्टोरियल है और 7 फैक्टोरियल भी है, 7 6 5 4 3 इंटू 2। इसका सिंप्लीफिकेशन आप करेंगे, इसका भी आप ही कर दो और मुझे आंसर दे दो, है ना। 22 फैक्टोरियल को रिड्यूस करो 12 फैक्टोरियल तक, है ना, उसको इसके बाद 10 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड करो, सिंप्लीफाई करो और दोनों को एडिशन करके मुझे यहाँ पर आंसर दो। डन। दिस इज नंबर ऑफ वेज बाय विच एक्सकर्शन पार्टी कैन बी अकर। एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं है, आपने ये लिख के छोड़ दिया तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। डन। हुआ सिंप्लीफिकेशन? नाउ क्वेश्चन नंबर 11, in how many ways can the letter of the word in how many ways can the letter of the word assassination be arranged so that all s are together? all s's are together, है ना, सारे s को एक साथ में लेना है। सो लेटर ऑफ द वर्ड assassination, कोई मीनिंग बताएगा? ए डबल एस ए डबल एस आई एन ए टी आई ओ एन, द वर्ड इज assassination। कोई मीनिंग बताएगा मुझे इसका? assassination। In how many ways can the letter of the word assassination be arranged so that all s are together? देखो इसके अंदर कितने s आ रहे हैं, 1 2 3 4, है ना। आपको डिफरेंट अरेंजमेंट फाइंड करना है, लेकिन कंडीशन कंडीशन क्या, ये जो टोटल 4 s है वो साथ में होने चाहिए। तो साथ में ले लेते हैं, चलो इसको हम एक नंबर दे देते हैं। क्या इसको दे देते हैं, एस 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 एस। इसको हम बोलेंगे सपोज दिस इज नथिंग बट दिस जेड, है ना, इसको साथ में ले लिया जेड, तो भी एक लेटर हो गया जेड। उसके बाद कितने होंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर होंगे, एन इक्वल टू, सो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्ड विद द लेटर ऑफ दिस वर्ड assassination इज इक्वल टू, कितने हुए थे, 10 फैक्टोरियल, टोटल 10 हुए थे ना, 10 फैक्टोरियल अपॉन, देखो कुछ रिपीट भी हो रहे हैं, क्या रिपीट हो रहा है, इफ वी चेक देन दिस वन, ए ए ए ए रिपीटेड 3 टाइम्स, है ना, 3 फैक्टोरियल। उसके बाद आई, आई भी रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो 2 फैक्टोरियल, और कुछ रिपीट हो रहा है, एन हो रहा है, एन 1 एन 2, एन रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स। सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स can be formed using the letters of the word assassination in which all s come together is 10 factorial upon 3 factorial into 2 factorial into 2 factorial। डन। सिंप्लीफिकेशन करो, चलो 10 9 8 7 6 5 4 3 3 2 2 3 3 कट, 2 2 जा 4 भी कट, और उसके बाद मल्टीप्लीकेशन करो, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, वो आपका आंसर आएगा। क्या आंसर आया?
151200. Done. So these are the total number of words can be generated from the letters of the word assassination.